1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 19 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स, एक्सोडस 13 चैप्टर 14 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 वचन से 15 वचन, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 14 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में, हिंदी में, DSI બાઇબલ में। એક વર્ષની બાઇબલ વાંચન યોજના રેપ્સોડી ઓફ રિયાલિટીઝ આપણે વાંચીશું માથીની લખેલી સુવાર્તા 19મો અધ્યાય 1 થી લઈને 15 કલમ, નિર્ગમન 13મો અધ્યાય અને 14મો અધ્યાય। ઇંગ્લિશની અંદર આપણે કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું, હિન્દીની અંદર BSI બાઇબલ અને ગુજરાતીની અંદર BSI બાઇબલમાંથી વાંચીશું। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में, फिर गुजराती में। પહેલા આપણે ઇંગ્લિશની અંદર વાંચીશું, પછી હિન્દીમાં અને પછી ત્યાર પછી ગુજરાતીની અંદર વાંચીશું। पवित्र आत्मा हमें वचन से दोस्ती करा। પવિત્ર આત્મા તમે અમને વચનની સાથે દોસ્તી કરાવો। हमारी गहरी दोस्ती वचन से हो जाए। અમારી ગહેરી મિત્રતા વચનની સાથે થઈ જાય। हमारा करीबी दोस्त, हमारा अपना अगर कोई है तो वो वचन हो जाए। અમારો કરીબી જે મિત્ર છે તે અગર કોઈ હોય તો તે અમારું વચન હોય। अगर हमारा ख्याल रखने वाला अगर हमें कोई नहीं, कोई जगह में कहीं पर भी हम कैसे भी अवस्था में दुख या कष्ट या समय असमय कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, वचन हमारा सहारा बने। કોઈ પણ અવસ્થામાં હોય, દુઃખની અવસ્થામાં હોય કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં અમે હોઈએ, પણ અમારું જે મિત્ર છે એ અમારું વચન જ, એ પ્રભુ તમારું વચન જ હોય। हमें वचन के साथ बात करना सीखा। અમને વચનની સાથે વાતો કરતા શીખો। हमें वचन को प्रेम करना सीखा। અમને વચનને પ્રેમ કરતા શીખો। हमें वचन को विश्वास में लेना सीखा। અમને વચનને પ્રેમ કરતા શીખો। हमें वचन को विश्वास में लेना सीखा। અમને વચનને વિશ્વાસમાં લેતા શીખો। हमें वचन पर ठहरना सीखा। અમને વચન પર ठहरता सीखो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमारी इस बात को पूरा करके दे। యేసుનાથના નામથી માંગીએ છીએ, આ વાતોને પવિત્ર આત્મા તમે પૂરી કરીને આપો। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। యేసుનાથના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। आमीन, 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 આમેન, આમેન, આમેન। हम पढ़ेंगे चैप्टर 19, क्राइस्ट healed the sick, answered the Pharisees touching divorcement, instructed how to attain eternal life, etc. हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से चैप्टर 19, मैथ्यू चैप्टर 19 किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे 1 वर्स से 15 वर्स तक। And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came into the coasts of Judea beyond Jordan, and great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God had joined together, let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery, and whoso marrieth her which is put away doeth commit adultery. His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Hallelujah. He that is able to receive it, let him receive it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. हम पढ़ेंगे हिंदी बीएसआई बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 1 वचन से 15 वचन तक। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा 19 अध्याय पहले वचन से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। देखो चेलों का डर कैसा है। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? तो फिर उससे अच्छा विवाह ना करना अच्छा है। उसने क्यों पता है? क्योंकि उनको पूरी गारंटी है कि ये वचन कोई पालन नहीं कर सकता है। ओके, उनको पूरा खातरी है इस बारे में। इसके लिए उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। देखा, ये स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है, मतलब जो मैरिज है तो भी मैरिड लाइफ की तरह नहीं जीते हैं। समझ में आया आपको? ओके। यानी वो पति को अपने साथ ही रहना चाहिए ऐसे जिद नहीं करते हैं, पत्नी को पति के ही साथ रहना ऐसे जिद नहीं करते हैं। ओके, वो आजादी देते हैं। समझ में आया? तो यीशु ने आजादी रखा है। ये ऐसा नहीं है कि आप मैरिज के बंधन में है तो बस आप मार खाते हुए जियो, आप तड़पते हुए जियो और यीशु मसीह को छोड़कर जियो क्योंकि आपका मैरिज का घर ऐसा है। ऐसा नहीं है। ओके, उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे जीना चाहते हो। ठीक है, क्या तुमको स्वर्ग के राज्य से प्रेम है तो तुमको उस वचन को स्वीकारना चाहिए जो वचन कहता है, ना कि उस पति को जो पति कह रहा है। समझ में आया आपको? ना उस पत्नी को जो पत्नी कह रही है। समझ में आया? तो हम खुद होके फैसला करने वाली जिम्मेदारी उठाना है। ठीक है, तो कभी ऐसा कंप्लेन नहीं करना है कि हमने शादी किया तब से हमारा प्रभु के अंदर का समय खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया वो आपका फैसला है। ओके, आपको बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया? आप थोप नहीं सकते हैं आपके मैरिज के ऊपर कि प्रभु यीशु से हम अभी ज्यादा समय नहीं बिता रहे, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। वो आपका फैसले में डिपेंड है। ओके, आपका मैरिज प्रॉब्लम में नहीं है, आप खुद अपने अंदर से फैसला क्या करते हो वो मायने करता है। ठीक है, और ऐसा करने के वक्त में
एक दूसरे की सम्मति रहना अच्छी बात है कि वो समझे, एक दूसरे समझे कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए ज्यादा समय लगाना चाहते हैं। ओके, तो हम शायद से घर की पूरी देखभाल नहीं कर पाएंगे, शायद से हम नौकरी में जाकर फिर ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। ओके, शायद से हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई नौकरानी रखनी पड़ेगी तो ये काम पूरा हो जाएगा। कभी कहाँ पर हमको एक एक काम छोड़ के परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, तब समझौता करना पड़ेगा कि हमको काम नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए। ओके, इस प्रकार से हमको एडजस्ट करना पड़ता है, परमेश्वर का समय हमने फैसले के अंदर लेना पड़ता है। ओके, तो ये बात नहीं है, ये कारण नहीं दे सकते हैं कोई कि हमने मैरिज किया इसके लिए हमको परमेश्वर में समय नहीं मिल रहा है, ऐसा कारण नहीं दे सकते हैं कोई। ठीक है, तो और जगत के अंदर का व्यवहार और परमेश्वर का व्यवहार दोनों अलग अलग है। तो जगत का व्यवहार भी परमेश्वर का समय खींचता है और परमेश्वर का समय जगत का व्यवहार का समय खींच लेता है। ठीक है, तो दोनों मिसमैचिंग है और मैरिज जगत के अंदर के व्यवहार में से है। ठीक है, और परमेश्वर उसको भी मान्यता दे रहा है और परमेश्वर का राज्य ये आत्मा के व्यवहार में परमेश्वर वो भी चाहता है, यानी हमको खुद को फैसला करना है हमने ज्यादा किस में ज्यादा रहना है। कितना प्यारा वचन है वो। ओके, बालकों को आशीर्वाद। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, इस वचन के अंदर कितना ही महान रीति से सच्चाई को आपने प्रकट किया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। पवित्र आत्मा, हम सब जब इस वचन के पास आएंगे खुदा परमेश्वर पढ़ते पढ़ते, तब आपके प्रकाशन हमारे मन में दीजिए। बहुत सारे लोगों का इस बारे में खुदा परमेश्वर एक परेशान जीवन हो चुका है। अब फादर गॉड हम सबकी सहायता कर दीजिए और आपके लिए ये समय बहुत अच्छा और गहराई से हम आपको पिता समझ सके इन वचनों में से, ये हमारे लिए अभिषेक कीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। अब गुजराती में पढ़िए, ये मेरा पर्सनल प्रेयर हम सब के लिए मैंने किया। ठीक है, अब पढ़िए। ગુજરાતી બાઇબલ BSI માંથી આપણે વાંચીશું માથીની લખેલી સુવાર્તા 19મો અધ્યાય 1 થી લઈને 15 કલમ સુધી। અને ઈસુએ એ વાતો પૂરી કર્યા પછી એમ થયું કે ગાલિલથી નીકળીને યર્દનને પેલે પારની યહૂદિયાની સીમોમાં તે આવ્યો અને અતિ ઘણા લોક તેની પાછળ ગયા ને ત્યાં તેણે તેઓને સાજા કર્યા। અને ફરોશીઓએ તેની પાસે આવીને તેનું પરીક્ષણ કરતા પૂછ્યું કે શું હરેક કારણને લીધે માણસ પોતાની સ્ત્રીને મૂકી દે એ ઉચિત છે? અને તેણે ઉત્તર દીધો, શું તમે એમ નથી વાંચ્યું કે જેણે તેઓને ઉત્પન્ન કર્યા તેણે તેઓને આરંભથી નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા? તે કહ્યું કે તે કારણને લીધે માણસ પોતાના મા બાપને મૂકીને પોતાની સ્ત્રીને વળગી રહેશે અને બંને એક દેહ થશે। માટે તેઓ હવેથી બે નથી પણ એક દેહ છે। એ માટે દેવે જેને જોડ્યું છે તેને માણસે જુદું પાડવું નહીં। તેઓ તેને કહે છે કે તો મૂસાએ એવી આજ્ઞા કેમ આપી કે ફારગતી આપીને તેને મૂકી દેવી? તે તેઓને કહે છે કે મૂસાએ તમારા હૃદયની કઠણતાને લીધે તમને તમારી સ્ત્રીઓને મૂકી દેવા દીધી, પણ આરંભથી એવું ન હતું। અને હું તમને કહું છું કે વ્યભિચારના કારણ વગર જે કોઈ પોતાની સ્ત્રીને મૂકી દઈને બીજીને પરણે તે વ્યભિચાર કરે છે, અને તે મૂકી દીધેલીની જોડે જે પરણે છે તે પણ વ્યભિચાર કરે છે। તેના શિષ્યો તેને કહે છે કે જો સ્ત્રી સંબંધી પુરુષનો એવો હાલ છે તો પરણવું સારું નથી। ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું કે સર્વથી એ વાત પડાતી નથી, પણ જેઓને તે આપેલું છે તેઓથી જ। કેમ કે કેટલાય ખોજા છે કે જેઓ પોતાની માના પેટથી એવા જન્મેલા છે, અને કેટલાય ખોજા છે કે જેઓને માણસોએ ખોજા બનાવેલા છે, પણ એ કેટલાય ખોજા છે કે જેઓએ આકાશના રાજ્યને લીધે પોતાને ખોજા કરેલા છે। જે પાડી શકે તે પાડે। जो मान सकता है वो माने।
हालेलुया। परमेश्वर हाँ शरीर के ऊपर इतना जोर नहीं डालता है। शरीर का मकसद आपके भलाई के लिए और परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना है। अब दोनों में से ज्यादा किसको करना है, हम खुद की भलाई करते हुए या परमेश्वर के ज्यादा काम करते हुए, वो हमने ही फैसला करना है। परमेश्वर दोनों के खिलाफ नहीं है, मैरिज के खिलाफ भी नहीं है और स्वर्ग के राज्य के खिलाफ भी नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस्ड जीना मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। हमको कठोर व्यवहार करके अब फैसले उठाने पड़ते हैं। एनीवे, परमेश्वर रहम करता है हमारे ऊपर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने बाकी है तो हाँ पढ़िए। ત્યાર પછી તેઓ બાળકોને તેની પાસે લાવ્યા એ માટે કે તે તેઓ પર હાથ મૂકીને પ્રાર્થના કરે અને શિષ્યોએ તેઓને ધમકાવ્યા, પણ ઈસુએ કહ્યું કે બાળકોને મારી પાસે આવવા દો ને તેઓને વાળોમાં, કેમ કે આકાશનું રાજ્ય तक ही पढ़ना है। હા વહી એવાઓનું જ છે। પછી તેઓ પર હાથ મૂકીને તે ત્યાંથી ગયો। હોવા અભી मैंने पढ़ा ना 15 वचन तक। हाँ अच्छा, मुझे ऐसे लगा नया है वचन, मेरे सोच में वो नया लगा मुझे। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पिता, परमेश्वर पिता तेरे आत्मा से पिता, आपने ये वचन के ओर हमारे ध्यान को खींचा और आपने हमें पिता परमेश्वर प्रकाशन दिया। धन्यवाद करते हैं। પરમેશ્વર પિતા, અમે તમને ધન્યવાદની ભેટ ચડાવીએ છીએ કે તમે અમને આ વચનોનું જે પ્રકટીકરણ આપ્યું છે તેના માટે અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के अनुसार आप हमें पवित्र आत्मा फिट और फिक्स कर रहे हो। ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા, તમે આ વચનો દ્વારા અમને ફિટ અને ફિક્સ કરી રહ્યા છો। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में आप ला रहे हो। ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડરલીનેસની અંદર તમે અમને લાવી રહ્યા છો। धन्यवाद। ધન્યવાદ। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन आमेन। ઈસુ નાસરીના નામથી માંગીએ છીએ, સાંભળો પિતા। આમેન आमेन આમેન आमेन। આમેન।